सो देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज द लैंग्वेजेस आइडेंटिटी में आपको डाउट है ना? हाँ सर। हाँ चला गया लैंग्वेज आइडेंटिटी दिस वन, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम लोग लैंग्वेज आइडेंटिटी भी बोलते हैं। क्वेश्चन में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आता है। क्या दिया है आपको? ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी का होल स्क्वायर। बोलेगा कि वैल्यू किसके बराबर होगा, तो ए हम लोग को इसके बराबर प्रूफ कर देना है यहाँ पे कि ये इसके बराबर हो जाएगा। सी हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। So we all know that what is the value of a cross b, that is the magnitude of a, magnitude of b and sin theta, and sin theta. We are talking about the magnitude only, and what is this one, magnitude of a, magnitude of b and cos theta। यही होता है ना? हमने कहाँ से स्टार्ट किया है सर? लेफ्ट हैंड साइड से भी स्टार्टेड। सो यू कैन सी क्लियरली। अच्छा साथ में ये पूरे का स्क्वायर है एक्चुअली, तो चलिए स्क्वायर भी मैं दे देता हूँ। ये हो गया ए क्रॉस बी का वैल्यू का स्क्वायर, और उसके ऊपर भी स्क्वायर है। नाउ यू कैन सी क्लियरली दैट फ्रॉम हेयर वी कैन टेक mod of a, mod of b whole square common, if we take common this one, so here we will left with sin square theta, and from here we left with the cos square theta, and this value is nothing but 1. So what we have, mod of a, mod of b का whole square into 1. So what we got it as mod of a, mod of b का whole square. This part only we need to prove, that is the right hand side, hence proved. That is called the Lagrange's identity. Clear? हाँ सर। हाँ, तो ये हमारे पास हो गया। We can prove, if you want to prove this one, that is the Cauchy-Schwarz inequality। तो बस एक जब ये सब नाम के साथ में नहीं दिया गया है, बट ये सब पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि हाँ बताओ ये किसके इक्वल हो सकता है। सो इफ़ वी सी दिस वन, व्हाट इट इज़ गिवन, मॉड ऑफ ए डॉट बी का मॉड। So you can see what is this value actually, mod of a, mod of b and cos theta, dot product na, dot product means cos theta. You can clearly see the maximum value of cos theta, the range of cos theta is always between 0 to 1, 0 to 1 nahi, minus 1 to 1, this is minus 1 to 1. So when it will be maximum, this will be maximum when cos theta equal to 1. So we can clearly see that this mod of a, mod of b into cos theta is always less than equal to 1. 1 नहीं, एक cos theta का वैल्यू जो हम 1 डाल देंगे, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू व्हाट, mod of a into mod of b, जब हमने cos theta को मैक्सिमम कर दिया। So very clearly we can say this is nothing but this is a dot b actually. So a dot b का magnitude is always less than magnitude of a into magnitude of b. That part is called actually what, that named as the Cauchy-Schwarz inequality. Clear na? हाँ सर। हाँ. Next, if we do here in this division part, that we have to find the angle between the two lines, and this is very very important also. See, let me explain you for you. So suppose if we have two line, any two line we have, this is the line L1, this is the line L2, and corresponding to line L1 supposed to be the, we have the direction vector as b1 vector, and corresponding to line L2 supposed to be the direction vector we have as b2 vector. Okay fine. सो आप देख सकते हो कि जो लाइन के बीच का एंगल होगा सर, वो दोनों के डायरेक्शन वेक्टर के बीच का एंगल होगा। सो वाट एवर इज द एंगल बिटवीन द लाइन, दैट विल बी द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन वेक्टर। ये पार्ट हमने लिखा भी था। सो क्या बोल देंगे कि एंगल बिटवीन टू लाइन इज सेम एज एंगल बिटवीन their direction vector, between their direction vector। तो वो दोनों के डायरेक्शन वेक्टर के बीच का जो एंगल है, दैट इज द एंगल बिटवीन द लाइन। ओके फाइन। नाउ वी हैव टू लाइन, सो गिवन लाइन यहाँ लिख लेते हैं। व्हाट आर द गिवन लाइन? तो गिवन लाइन अगर लिख लें सर, फर्स्ट लाइन को लिख लेते हैं पहले। मान लीजिए L1 लाइन, इसको बोल देते हैं L1।
that we have 2x is equal to 3y is equal to minus z. So let us first write this into the standard form. तो हो जाएगा x divided by 1/2 इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 1/3। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको ऊपर में कोफिशिएंट 1 रखना है, इसीलिए मैंने 3 को नीचे लेके आ गया। दिस पॉइंट वी विल राइट z बाई -1। सो आपको पता है जो नीचे होता है इसी को बोलता है डायरेक्शन फैक्टर, यानी कि जो b1 फैक्टर है वो हो गया अपने पास 1/2 i प्लस 1/3 j माइनस में हो जाएगा k। दैट इज द फैक्टर b1। व्हाट अबाउट द L2 line? L2 line we have where it is given 6x is equal to minus y is equal to minus of 4z. So you can see if you want to write into the standard form, this is x divided by 1/6 is equal to y divided by -1 is equal to z divided by -4. So from here we can say that what is this b2 vector, that will be 1/6 i माइनस जे माइनस में हो जाएगा 4k। दैट इज द b2 लाइन। अब दो वेक्टर के बीच का तो एंगल निकालना हम लोग अच्छे से जानते हैं। सो एंगल बिटवीन द b1 एंड b2 वेक्टर वही दोनों के लाइन के बीच का एंगल हो जाएगा। सो एंगल बिटवीन द वेक्टर b1 एंड वेक्टर b2। हाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा? सो cos थीटा इज नथिंग बट b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाई magnitude of b1 and magnitude of b2. Let us first write the dot of both vectors. This is the vector number 1 and this is the direction vector number 2. डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? i वाला को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1/2 इंटू 1/6 प्लस 1/3 इंटू -1 प्लस -1 एंड इट इज़ -4 भी है, -4। और नीचे में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2 लाइक दैट। ओके फाइन। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देख लीजिए, तो ये क्या हो गया अपने पास 1/12 माइनस में हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा मेरे ख्याल से प्लस हो जाएगा, प्लस में हो गया 12। ठीक है ना? सो इफ़ वी टेक द और नीचे में ये हो गया अपने पास b1 एंड b2 का मॉड, यही होगा ना? सब कुछ ठीक लिखा हूँ तो ठीक है। सो फाइन। सो व्हाट इट इज़ इफ़ वी टेक एलसीएम, सो 12 विल बी द इट्स एलसीएम। ये हो जाएगा अपने पास आपका 1 एंड इट विल बी -4 ना, एंड व्हाट इट विल बी तो व्हाट नहीं समथिंग आई थिंक वी हैव डिड मिस्टेक और व्हाट, और दिस विल बी द ओनली पार्ट 2x x/2 1/3 -1। ठीक है, पहला लाइन तो ओके 12 it is somewhere in the question they given 12। no ठीक है। here we did mistake, this -4 is there na, -4, so if we take down it will be 1 by -4 actually, it should be -1/4 like that, it will be like that। so ठीक है, एक तो ऐसे कर लेते हैं, इसको दोनों मेथड से करा दूंगा। so यहाँ पे 4 ना होके it will be -1/4 actually, this will be what -1/4। so it will be what we have 1/4, it will be 1/4, clear na? so if we take LCM in the upper part, it will be 12, तो हो गया अपने पास 1 and this will be -4 and this will be +3 whole divided by magnitude of b1 and magnitude of b2। तो you can see ये तो 0 हो जाएगा सर, क्योंकि 4 - 4 0, तो न्यूमरेटर पार्ट इज कमिंग आउट टू बी 0, तो नीचे नहीं भी सॉल्व कर दिया मुझे, तो ये सर 0 ही आया नीचे वाला वैल्यू। सो व्हाट वी गॉट एज cos थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दोनों का दोनों लाइन कैसा होगा सर अपने पास? परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ गया ना? देखिए अगर मे भी मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है फ्रैक्शन के साथ, तो व्हाट यू कैन डू, वन मोर थिंग लेट मी शो यू।
दोनों से आंसर सेम ही आएगा, है ना। सो मेथड 2 फॉर सिंप्लीफिकेशन पार्ट, ऑल द बोथ आर सेम ओनली, बट थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आई थिंक फ्रैक्शन में आप से बच जाओगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया है आपका 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू माइनस जेड। So 2x is equal to 3y is equal to minus z it is. So what you can do, whatever the coefficient of x, y, z, you take the LCM. So what is the LCM of this 2, 3 and -6? So you can say कि sir it will be -6, है ना। अगर मैं 2, 3 और -1 का अगर LCM ले लें तो माइनस के साथ कर लेते हैं, -6 हो जाएगा, ठीक है ना। सो क्या कर लेते हैं सर, पूरे को ना -6 से डिवाइड कर देते हैं। सो इफ़ वी डिवाइड ऑल टर्म बाई -6 इट विल लाइक दैट, यहाँ भी हो जाएगा 3 बाई -6 और ये हो जाएगा -z बाई -6। सो इट विल बी x बाई -3 इज इक्वल टू y बाई -2 इज इक्वल टू z बाई 6। तो देखिए यही आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो मैंने वहाँ पे फ्रैक्शन में लिया था डायरेक्शन को, डायरेक्शन वेक्टर, आप चाहो तो बिना फ्रैक्शन के भी लिख सकते हो, सेम ही चीज़ आएगा। 3i - 2j + 6 के कर दो तब भी वही चीज़ आ जाएगा। एंड B2 को भी इस तरीके से लिख सकते हो, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। गॉट इट व्हाट आई एम टेलिंग हियर। इसीलिए फॉर फाइंडिंग द एंगल द डॉट प्रोडक्ट इज प्रिफरेबल। वाई? बिकॉज हियर वी नो नीड टू यूज द डिटर्मिनेंट लाइक दैट। आप चाहो तो कॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हो, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, बट वही प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, बस बाकी सब कुछ कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट बोल दीजिए। नेक्स्ट कौन सा है अपने पास? सी हियर द नेक्स्ट वन। We know that if two lines are parallel, so what is the condition for parallel vector? Condition for parallel vector याद है क्या? अगर दो वेक्टर पैरेलल है देन व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट? बोलिए। तो दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता था ना, तो होता था अपने पास क्या, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो उसका कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो हियर यू जस्ट चेक, यहाँ पे सर ये जो डायरेक्शन वेक्टर यहाँ 2i है, फिर 3j है, -6 के है, और यहाँ पे 6 है, 9 है और 18 है। दोनों का रेशियो निकाल के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2/6 और ये हो जाएगा 3/9 और ये हो जाएगा -6/-18। चेक कर लेते हैं क्या सारा वैल्यू सेम आ रहा है। ए कट के आ जाएगा 1/3, ए भी कट के आ जाएगा 1/3 एंड ए भी कट के आ जाएगा 1/3। ओके, तो ये तो आपका a1/a2 था, है ना, ये आपका क्या था, b1/b2 था और ये आपका c1/c2 था। It means what you got? You got this condition a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2. So these two are the parallel line. कैसा लाइन होगा अपने पास? पैरेलल लाइन हो जाएगा, because it is follow this conditions. क्लियर है क्या? So if these are not parallel, so it will be either skew or coincident line. कोइंसिडेंट लाइन नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अगर कोइंसिडेंट लाइन भी होगा ना तो ए वाला पार्ट दोनों पॉइंट सेम हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन तो सेम पक्के से होगा और दोनों एक ही पॉइंट से पास कर जाएगा। तो अगर ये सामने वाला अगर जो वेक्टर लिखा हुआ है, अगर ये दोनों वेक्टर सेम हो जाए तो फिर कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा, और अगर साथ में ये भी हो जाए और वेक्टर भी आपका डायरेक्शन वेक्टर पैरेलल हो जाए, देन दिस इज द केस ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन आपने पढ़ा था कि सर अगर लाइन पैरेलल नहीं है ना, पैरेलल अगर नहीं है तो या तो स्क्यू लाइन होगा या इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। फॉर दैट हम उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल कर चेक करेंगे। तो मोस्टली यहाँ क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो वो पैरेलल ही देंगे, है ना, क्योंकि अगर उसको फिर इंटरसेक्टिंग चेक करने के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इंटरसेक्टिंग और स्क्यू के लिए। तो वो वाला क्वेश्चन आता है आपके पास 4 या 5 नंबर में। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो मोस्टली पैरेलल और नॉन पैरेलल चेक करने के लिए आएगा। पैरेलल कब हो जाएगा सर? अगर डायरेक्शन वेक्टर का अगर रेशियो सेम है देन पैरेलल, और अगर डायरेक्शन वेक्टर का रेशियो सेम नहीं है तो नॉट पैरेलल। ठीक है क्या? ओके, सो ये आप देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या अपने पास, एक मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन बोला कि फाइंड द यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द वेक्टर
ए एंड बी, मतलब ए एंड बी जो वेक्टर गिवन है उसका परपेंडिकुलर में मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए. वेक्टर ए गिवन टू अस एज 5i प्लस 6j माइनस 2k एंड वेक्टर बी गिवन टू अस एज 7i प्लस 6j प्लस 2k है शायद, है ना. तो हाँ दीज टू हाँ आर द गिवन वेक्टर. तो पहले लिख लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे एक बार मैं. सो सॉल्यूशन पार्ट यहाँ कर देता हूँ. Solution of question number 4. So what is the given vector? Given vector A is equal to 5i प्लस में 6j माइनस में 2k, माइनस में 2k, ठीक है सर. एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 7i प्लस में 6j प्लस में 2k, ठीक है ना, प्लस में 2k, ठीक है. नाउ आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट. तो जब भी हम किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं ना, तो हमेशा जो वेक्टर मिलता है वो दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है. यानी कि अगर मैं बोल दूं एक ऐसा वेक्टर निकल के आ जाएगा इस तरीके से, ये वेक्टर जो मिलेगा, ये वेक्टर बी अंदर में था एक्चुअली, ऐसे बनाता हूँ. ये जो वेक्टर बी है आपका, ये वेक्टर जो मिला है दैट इज द ए क्रॉस बी वेक्टर. दिस इज द वेक्टर, इफ आई एम टेलिंग दिस इज द वेक्टर ए क्रॉस बी. सो ए क्रॉस बी वेक्टर है, वो ए के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ऐसे, और अगर आप इसके साथ देखिएगा यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा एंगल. तो ये दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर है. इसको और थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ तो ज़्यादा परपेंडिकुलर दिखेगा. इसको ना ऐसे बना देता हूँ. ये तो एक ही प्लेन में है और ये देखिए अलग प्लेन में. दिस इज द वेक्टर इन द परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ए वाला. तो ए वाला वेक्टर देखिए यहाँ भी इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और इसके साथ भी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर ए क्रॉस बी वेक्टर. सो लिख लेते हैं इस बात को कि वेक्टर परपेंडिकुलर, याद रख लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ हाँ जब भी किसी भी दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट. सो द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी given by what? Vector perpendicular to both a and b is given by a cross b. तो a cross b जब हम निकालते हैं then we'll get a vector that will be perpendicular to both vector. So निकाल लीजिए अपने पास पहले तो a cross b जो कि वेक्टर आएगा दोनों का परपेंडिकुलर. तो क्या हो जाएगा i j and then k. What it is? 5 6 and then minus 2. This is 7 6 and then 2. So this is the part here we have, ठीक है ना. so इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको तो सॉल्व करने आता ही है. तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और a माइनस माइनस प्लस से भी हो जाएगा 12. देन माइनस j, ये हो जाएगा ख़त्म. 5 2 जा 10 प्लस हो जाएगा 14 एंड देन प्लस k आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 6 25 माइनस 7 6 42. सो व्हाट इट विल कम 24i प्लस 24j प्लस नहीं माइनस ना, ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस 24j एंड इट विल बी व्हाट माइनस 14 हो जाएगा. क्या 14 ही होगा ना. 12 ओ 12, हाँ 12 के, ठीक है ना. 12 देखो मैं बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ 14, पता नहीं 14 से क्या हो गया आज. तो ये हो गया 12, ठीक है. सो दिस इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी बट वी वांट अ यूनिट वेक्टर. सो क्वेश्चन में दिया था यूनिट वेक्टर. सो फॉर यूनिट वेक्टर व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड. सो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के रख लेते हैं. क्या हो जाएगा, you can check here, we can take 12 common easily. So this will be 2 iota minus 2j माइनस में 2k, ठीक है ना. सो 12 को तो पूरे रूट से बाहर निकाल लेंगे और इसका हो जाएगा सर रूट. माइनस के होगा. हाँ माइनस के हो जाएगा. ओ यस 12 तो कॉमन कर ले, ठीक है. सो 2 का स्क्वायर इट इज़ 4 और फिर से प्लस 4 और फिर से प्लस 1. सो ये आपका हो गया 12 इंटू रूट अंडर 9 3 होता है, दैट इज़ 36. सो इसका मैग्नीट्यूड 36 हो गया. सो इफ़ यू वांट यूनिट वेक्टर
परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी विल बी व्हाट, इस वेक्टर को हम क्या करेंगे 36 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2i माइनस 2j माइनस के डिवाइडेड बाई 36। तो ये सर जी कटेगा 3 टाइम ऐसे करके, तो हो जाएगा 2/3i माइनस में 2/3j माइनस में k/3। तो ए आपका आ जाएगा, ए फाइनल आंसर, ए एक यूनिट वेक्टर हो गया जो ए एंड बी का परपेंडिकुलर है और साथ में यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। समझ में आ गया क्या? सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन। सो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है अपने पास याद है क्या आपको? व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन देखता हूँ यहाँ से 3D वाला लाइन मिलेगा अपने को, हाँ मिल जाएगा। देखिए तो 3D बन जाए भाई। क्या हो रहा है? ठीक, ये वाला है ना, दिख रहा है ना? हाँ देखिए सर। अगर मैं बोल देता हूँ, मान लीजिए इस तरीके से, इसको बोल दिया एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको बोल देता हूँ अपने को अंदर में वाले को वाई एक्सिस, तो ये आपका ऊपर में बन रहा है जेड एक्सिस, ठीक है। सो इफ वी टेक एनी लाइन, इफ वी टेक एनी लाइन, सपोज दिस इज द लाइन वी हैव टेकन, ओरिजिन हो गया, यहाँ से हमने यहाँ पे कोई एक फैक्टर ले लिया इस तरीके से। तो ए फैक्टर एक्स के साथ जो एंगल बनाया, सपोज दैट एंगल इज अल्फा। ए वेक्टर वाई के साथ जो एंगल बनाया, सपोज दैट एंगल इज बीटा। एंड जो जेड के साथ एंगल बनाया, दैट इज सपोज एंगल टू बी अल्फा। then the values of cos alpha, cos beta and cos gamma, that is your L, M, N, are called as डायरेक्शन कोसाइन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए इस वाले क्वेश्चन में उसने बोला है कि 90 डिग्री बनाया है एक्स के साथ, मतलब आपको अल्फा गिवन है, अल्फा गिवन है 90 डिग्री। फिर बोला है 135 बनाया है वाई के साथ, वाई के साथ वाला एंगल को बीटा बोलते थे, बीटा दिया है अपने को 135 डिग्री। फिर बोला है 45 बनाया है जेड एक्सिस के साथ में, यहाँ पे दिया हुआ है जेड के साथ, मतलब आपका गामा दे दिया है 45 डिग्री। तो जो डायरेक्शन कोसाइन होता है एल वो क्या होता है सर? उसका कॉस का वैल्यू होता है। सो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा मतलब कॉस 90 डिग्री जो कि हो जाता है 0। कॉस बीटा तो कॉस 135, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? कॉस ऑफ 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। एंड कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 45। साइन ऑफ 45 इज 1/√2, बाहर माइनस लगा है तो हो जाएगा माइनस 1/√2। यानी अगर 45 का निकालना है तो cos 45 व्हाट इट विल बी 1/√2। सो डायरेक्शन कोसाइन क्या निकल के आ रहा है इसका? यही वैल्यू को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइंस आर, एक तो 0 हो गया, एक हो गया अपने पास कहाँ माइनस 1/√2 और प्लस 1/√2। सो दीज आर द वैल्यूज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को इस तरीके से सिंबल में लिख देते हैं, इस तरह से ब्रैकेट करके, इस टाइप से। दैट इज द आंसर। क्लियर है क्या? हाँ तो ठीक है, देख लीजिए इस क्वेश्चन में अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ड्रॉ में जाके पेन मिलेगा, ठीक है। बोला है कि अपने को ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो जैसे जैसे देखिए जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन वी हैव टू डू। बोला है कि ए एक यूनिट वेक्टर है तो हम दिमाग में बोल लेंगे कि अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो 1 दिया हुआ है। बी भी एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी अपने को 1 दिया हुआ है, बढ़िया है। चलिए देन प्रूव दैट ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 cos ऑफ थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। दैट इज द क्वेश्चन।
दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है ना? ठीक है। सो आप क्या कर लेंगे यहाँ पे देख लीजिए। तो हमको यहाँ पे ये ओपन करेंगे पहली बात तो सर। सो वी ऑल नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का मॉड का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, इसका चलिए मैं स्क्वायर निकालते हैं, बाद में रूट ले लेंगे। सो ये होता है, आपको पता होगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, यही होता है ना, कॉस थीटा। सो व्हाट इज द मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, दैट विल बी 1 प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो 1। क्वेश्चन में गिवन यूनिट वेक्टर 2 इंटू 1 इंटू 1 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा सर। 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस 2 कॉस थीटा हो गया आपका। 2 हम चाहें तो कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। एंड अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, व्हाट इज द 1 प्लस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस 2 थीटा, याद है आपको? व्हाट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता था, याद है ना? ये वाला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा बहुत बार। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सर यहाँ पे हाफ कर देंगे, मतलब अगर सब बोल देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बोलना होगा। देखिए अगर यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हो गया, तो अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। जो भी यहाँ एंगल आता है उसका आधा हो जाता है इधर, यानी कि यहाँ तो 1 प्लस कॉस थीटा है तो हो जाएगा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमने किसका वैल्यू निकाला है? ये तो हमने ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर का निकाला है। तो मुझे तो स्क्वायर अगर हटाना होगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 का 4, बाहर 2 आ जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हट के कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये वाला पार्ट आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड बोल देंगे। ये हमारा हो गया। ठीक है क्या?